Hello everyone, I'm Manali Panchpai from Engineers Classes, and today we are going to start with combination of errors. Combination of errors मतलब क्या? Combination of errors मतलब we are going to do calculations of certain physical quantities जो हम करने वाले errors कुछ type of physical quantities में when we are going to calculate we are going to consider इट्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब दो क्वांटिटीज़ को हम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे या कोई एक क्वांटिटी को हम बहुत बड़े वी कैन से अमाउंट में लेंगे मतलब कोई एक क्वांटिटी जो 5 टाइम्स है 5 टाइम्स मतलब दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज विथ इट्स एक्सपोनेंशियल टर्म टू द पावर 5 राइट मतलब वो 5 गुना हमने वो क्वांटिटी ली है तो तब वो मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो बेसिकली वी आर अंडरस्टैंडिंग एरर्स in physical quantities when they are combined with some mathematical operation. So 5 parts we are going to understand. The first is addition, then subtraction, then multiplication, then division, and the fifth one is exponential term or power term. Okay, so let us start with the addition. First part we are going to understand in addition combination of errors. Okay, let's say we have taken one quantity which is A is equal to A bar plus or minus delta A. Now what does this say? So this is the notation of a physical quantity with its three values, true value, measured value and error value. So this true value is equal to measured value plus or minus error value of that particular physical quantity. True value is equal to measured value plus or minus error value. This is some quantity A. Now there's another quantity B is equal to B bar plus or minus delta B. So there's some different physical quantity which is of value B, its true value B, its measured value B bar plus or minus delta B. Okay, and the third value, the third physical quantity x is equal to x bar plus or minus delta x. Okay, these three quantities we have taken. Assuming A और B का हमें कुछ तो process लाना है in the result of terms of x. मतलब x जो quantity है, it is basically what? Addition of A and B. This is the mathematical operation we are supposed to do and find out errors क्या आएगा ये combination के लिए. Clear? So there are two quantities A and B given. जब हम वो दोनों के ऐड करते हैं तो तीसरा quantity हमें मिलता है x. The third quantity as a resultant quantity in the addition of physical quantities A and B we get is x quantity. Now this operation we are supposed to do. This operation, summation or addition, this operation we are supposed to do and we want to see कि ये दोनों को ऐड करके ये दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करके जो भी रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है विच इज एक्स उसका एरर कितना होगा. सो वी वांट डेल्टा एक्स क्या होगा इन दिस कॉम्बिनेशन. क्लियर? वी वांट टू फाइंड आउट डेल्टा एक्स क्या होगा इन दिस कॉम्बिनेशन. मतलब ऐड किया तो ए और बी के कौन से टर्म को लेके हमें डेल्टा एक्स मिलेगा मतलब एरर इन द रिजल्टेंट टर्म मिलेगा. ओके, नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट the given value. तो x क्या है? It is x bar plus or minus delta x is equal to a क्या है? It is a bar plus or minus delta a. Okay, the बीच वाला operation is plus. b क्या है? b bar plus or minus delta b. Okay, सब कुछ substitute हो गया. Now what we are going to do is we are going to open the brackets. When we are opening the bracket के बीच में plus sign है मतलब plus sign कि आगे पीछे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे सो ऑल द साइंस विल रिमेन एज इट इज. सो दिस विल एंड अप एज ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस बी बार प्लस और माइनस डेल्टा बी. ओके, नाउ व्हाट आर वी डूइंग? हम मेजर्ड क्वांटिटीज़ को एक साइड लेके जाएंगे और एरर क्वांटिटीज़ मतलब एरर वैल्यूज़ को एक साइड लेके आएंगे. सो इफ़ यू सी हियर, लेट मी टेक डिफरेंट कलर मार्कर. ओके, इफ़ यू सी हियर, these are the two measured quantities, yes or no? Okay, and these two are the error quantities. If you see
एरर वैल्यूज इफ यू सी, मैंने यहाँ पे साइन लेके पूरा बॉक्स बनाया है, राइट. वी विल नेवर से 5. अगर उसके आगे माइनस साइन है तो वो -5 है. वी कैन से 5 जब उसके आगे प्लस साइन है. क्लियर. तो यहाँ पे डेल्टा ए डेल्टा बी दोनों एरर्स के वैल्यूज में प्लस और माइनस दोनों है. सो इट कैन बी +12, इट कैन बी -17. सो वी डोंट नो कैलकुलेशंस में क्या आएगा. तो जब भी हम ये डेल्टा ए का टर्म मूव करेंगे या डेल्टा बी का टर्म मूव करेंगे तो उसके आगे उसका साइन देखेंगे. अगर प्लस है तो ठीक है, डायरेक्ट लिख दो. पर अगर प्लस और माइनस है या माइनस है देन यू हैव टू टेक द साइन विथ इट्स टर्म. क्लियर. चलो लिखेंगे. तो मेजर्ड वैल्यूज साथ में, मतलब ए बार और बी बार साथ में आ गए. ओके. देन प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी. तो ये क्या मिला? दिस इज आवर measured value and this is our error value. Okay, this is equal to what? X bar plus or minus delta x. Now if you can see x quantity, resultant quantity में ये अपना measured value है and this is our error value. Okay, now delta x चाहिए हमें, delta x चाहिए. तो ये final term में से दो पार्टीशन डालेंगे हम. कैसे? we got to know that x bar is equal to a bar plus b bar. so we could conclude first thing out of it, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम ट्रू वैल्यू में, x a और b तीनों ट्रू वैल्यूज है, राइट. तो ट्रू वैल्यू में जो भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो ही सेम ऑपरेशन रिफ्लेक्ट होगा उसके मेजर्ड टर्म्स में. मतलब इफ x इज इक्वल टू a प्लस b, दिस इज ऑल ट्रू वैल्यूज, वी आर गोइंग टू एंड अप द सेम इनटू मेजर्ड वैल्यूज. x बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, राइट. इवेंचुअली हर एक ऑपरेशन में हम वही देखेंगे, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करेंगे एंड में मेजर्ड वैल्यूज में सेम ऑपरेशन रिफ्लेक्ट होने वाला है. ओके. हमें चाहिए एरर्स में क्या आएगा. मतलब डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी. तो लेट्स से, नहीं यहाँ पे नहीं लिखते, जहाँ पे ज़्यादा जगह है वहाँ पे लिखते हैं. चलो लेट्स से प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी को अगर हमें इवैल्यूएट करना है तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे. चलो से डेल्टा ए इज इक्वल टू 7 एंड डेल्टा बी इज इक्वल टू 3. ओके, फॉर एग्जाम्पल. ओके, शुरू करते हैं. डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. ये नाटक क्यों किए? 4 साइन दिख रही है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे. कैसे? प्लस प्लस मतलब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस मतलब डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस प्लस मतलब माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एंड द एंड वन माइनस माइनस मतलब माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. ये 4 पॉसिबिलिटीज़ को छोड़ के और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है. अब इसको हम एग्जाम्पल के हिसाब से रिजल्ट लिखेंगे. इसमें 7 प्लस 3, 7 माइनस 3, here -7 plus 3 and -7 minus 3. चलो 7 plus 3 10, 4 minus 4 minus 10. It has nothing to do with single digit में आ रहा है या double digit में आ रहा है नंबर. It has nothing to do with that. Here tell me, ये चारों कॉम्बिनेशन में से tell me which combination acquire the maximum amount. ये चारों कॉम्बिनेशन में से सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन से कॉम्बिनेशन का है? सो इट इज़ दिस वैल्यू. It is this value. So this is the amount we are going to consider. तो बाकी के जो मुफ्त में दिए हैं वो क्यों नहीं लिए? Why do you think we have not taken this value? तो जब हम 2 क्वांटिटीज़ को इकट्ठा करेंगे
दो क्वांटिटीज़ को इकट्ठा करेंगे, एक का साइन प्लस हो सकता है, एक का साइन माइनस हो सकता है। क्वांटिटीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं हम, प्लस और माइनस साइन को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। क्वांटिटीज़ को जब हम इकट्ठा कर रहे हैं वो पर्सपेक्टिव से जब हम देखेंगे तो प्लस का भी एरर आएगा, माइनस का भी एरर आएगा। अगर दोनों प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस का भी एरर आएगा, दूसरे प्लस का भी एरर आएगा। अगर दोनों माइनस है तो क्या होगा, माइनस क्वांटिटी का भी एरर आने वाला है, ये वाले माइनस क्वांटिटी का भी एरर आने वाला है, मतलब एरर आने वाला है, राइट। तो एक प्लस या एक माइनस करके एक का एरर ऐड करेंगे और माइनस वाले टर्म का एरर निकाल देंगे, नेवर। एरर तो है, उसका साइन माइनस हो सकता है, क्लियर, मतलब एरर नहीं जा रहा है, एरर है। सो सिमिलर वे अगर यहाँ पे माइनस साइन है पर उसका एरर तो है, उसका एरर तो है, तो उसमें -3 करके क्या किया, यहाँ पे एरर निकाल दिया, नो। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -7 करके क्या कर दिया, उसका थोड़ा सा एरर निकाल दिया रिजल्ट में। यहाँ पे क्या किया, वो जो भी एरर आ रहा है उसको भी निकाल दिया, अरे ये भी 10, ये भी 10, ये -10 है, पता चल रहा है। तो जब भी हम दो क्वांटिटीज़, 3, 4, 5 क्वांटिटीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर मैथमेटिकल ऑपरेशन वी डू, जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को इकट्ठा करेंगे, जब फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम साथ में रखेंगे, एरर हर एक कंसिडर होना चाहिए, क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ ना कुछ एरर लेके आएगा, कुछ ना कुछ एरर लेके आएगा। यू आर नॉट सपोज टू गेट मिस्टेकन कि अगर माइनस है तो एरर कम है, नहीं। माइनस मतलब जो हमने मेजर किया है उसके आगे पीछे माइनस हो सकता है, उसके आगे पीछे प्लस हो सकता है। माइनस मतलब एरर कम हो रहा है, दैट इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, क्लियर, ओके। तो एरर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर रहे हैं, मैक्सिमम एरर दे दिया, मैक्सिमम एरर दे दिया, मतलब दो क्वांटिटीज को इकट्ठा किया, मैक्सिमम एरर आ सकता है 20%, राइट। मतलब यहाँ पे 20% आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 4% आया, यहाँ पे 7% आया। मैक्सिमम एरर की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, 20%, वो मैंने कैलकुलेशन में दे दिया, मतलब उससे ज़्यादा एरर पॉसिबल है ही नहीं। सो वेन एवर वी पुट कैलकुलेशंस वी ऑलवेज गिव मैक्सिमम एरर कैलकुलेटेड, उसके ऊपर एरर आने ही नहीं वाला, क्लियर। तो वैसे ही ये चारों में से अगर मैक्सिमम एरर वी आर सपोज टू गिव तो कौन सा देंगे, एडिशन वाला देंगे, ओके। एरर 10 से कम आ सकता है, -10 तक जा सकता है, राइट। बट वो प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक कहाँ तक आएगा, 10 तक। तो कैलकुलेशन में क्या दे दो, 10 तक दे दो। मतलब अगर एरर आया तो मैक्सिमम 10 आया, और अगर 10 नहीं आया तो डेफिनेटली उससे कम आया, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, राइट, क्लियर, ओके। सो वी एंड अप गेटिंग वन मोर रिजल्ट विच इज डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a plus delta b. So this will be our final equation of error in terms of two physical quantities when they undergo addition or summation. ये clear हुआ, right? चलो लिखो।